Talk about the integration of princely states in India. So we'll know, how this union and its territory basically came to being. So before independence, जो British India था, it consisted of the British ruled provinces and the 565 princely states. Okay, so we have talked about it that the 565 princely state, it basically was made up of the kingdoms which accepted the British suzerainty or who fell early on to the policy of subsidiary alliance, and then they sort of continued as independent kingdoms but under British suzerainty. So now what happened that the British paramountcy or the British control over these princely states, it ended on August 15, 1947, and three choices were given to these states. One was to join India, the other was to join Pakistan, and the third was to remain independent. Okay, so on paper, they had three choices. But actually, what had happened was they had only two choices whether to join India or Pakistan. So, what had happened was, like Hyderabad said initially, that okay, we will stay independent. Jammu Kashmir said that we will stay independent. Okay. And Junagadh, it was sort of gravitating towards Pakistan. Okay, so because what was the case in Junagadh was that the people, they were Hindu, but the ruler, he was a Muslim. So there was an affinity of the ruler, and he got a good deal from Pakistan. And he had discussions, and then he started to think that okay, it is better to join Pakistan. So what had happened was that both India and Pakistan were clear in one thing, that we cannot let any of the princely state remain independent. Why? Because each of them knew that अगर हम छोड़ देंगे independent, if we will leave them independent, the other country will swoop them. So this is what happened with the case of Jammu and Kashmir. एंड जम्मू एंड कश्मीर में हुआ क्या था? जम्मू एंड कश्मीर में ये हुआ था दैट द महाराजा सेड दैट वी विल मेक अ सिंगापुर इन एशिया, सॉरी, वी विल मेक अ स्विट्जरलैंड इन एशिया. हम जो है एशिया के स्विट्जरलैंड बनेंगे. वी विल बी अ कंट्री विच इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया. वी विल बी अ ट्रेड हब, वी विल बी अ फाइनेंशियल सर्विसेज हब. बट व्हाट हैपेंड when he said that we will be independent, Pakistan the next day, they invaded Jammu and Kashmir. So India said that okay, we will not allow Jammu and Kashmir to fall in Pakistani hands. We will not be allowing them to fall in Pakistani hands. So what did India do? India, it forced the ruler कि आप जो है एक decision बनाइए. You make a decision whether you want to get gobbled by Pakistan or whether you want Indian help. So the ruler said that it is better to be under India than under Pakistan, and he signed the instrument of accession. And then Indian army, it got dropped ऑन दी श्रीनगर एयरपोर्ट, और श्रीनगर एयरपोर्ट तक आपके पाकिस्तानीज आ चुके थे. एंड फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट द इंडियन आर्मी स्टार्टेड पुशिंग द पाकिस्तानीज बैक. एंड देन द यूनाइटेड नेशंस, इट मीडिएटेड अ सीज फायर, और उसी से जो है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल बनता है. ठीक है. सो इंटीग्रेशन क्रूशियल क्या था? विदाउट इंटीग्रेशन इंडिया वुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी. तो पहले बहुत क्लियर थे. जैसे भोपाल, भोपाल वॉज इनिशियली सेइंग दैट वी विल स्टे इंडिपेंडेंट. उनको तुरंत बता दिया गया भाई देखो ऐसी कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट रहोगे तुरंत आपको जो है हम लोग मिलिट्री एक्शन लेंगे. सो भोपाल वॉज ऑल्सो ब्रॉट इन लाइन. देन द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, ही सेड दैट ओके, नो नो, आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टे इंडिपेंडेंट एंड आई विल सेल मोनाजाइट. मोनाजाइट वगैरह जो है, और उनके जो कोस्ट है, केरला का कोस्ट है, दैट वाज वेरी रिच, ओके, फॉर मोनाजाइट. और उस समय जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है, दैट वाज इन ऑन द एसेंट. तो ऐसा कहा गया कि ट्रावनकोर भी जो है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहेगा. बट इट वाज आल्सो ब्रॉट इन लाइन. दे सेड कि अगर इंडिपेंडेंट रहिएगा तो तुरंत आप पे जो हम एक्शन लेंगे. बट मेजर प्रॉब्लम हैपेंड विद थ्री किंगडम्स, हैदराबाद, JNK एंड जूनागढ़. नाउ हैदराबाद के साथ क्या प्रॉब्लम थी? हैदराबाद वाज अ रिच स्टेट. द द रूलर, ही वाज द रिचेस्ट मैन. उस समय जो था ओस्मान अली, ही वाज द रिचेस्ट मैन इन द इंटायर वर्ल्ड. ओके. सो उस समय आपका टेक बिलियनियर का कंसेप्ट नहीं होता था. इन दोज डेज जनरली पीपल हु वेर इन द बिजनेस ऑफ ऑयल और सम कॉमोडिटी, दे यूज टू बी रिच, और people who had
जनरेशनल वेल्थ। तो ये जो हैदराबाद के रूलर थे, दिस पर्सन ही वॉज सेइंग दैट कि मैं जो है इंडिपेंडेंट रहूंगा, एंड देन इंडिया स्टार्टेड प्रेशराइजिंग हिम। ही सेड दैट इफ यू विल प्रेशराइज मी आई विल ज्वाइन पाकिस्तान। ओके, आप जो है अगर मुझे बहुत प्रेशर करिएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पाकिस्तान ज्वाइन कर लूंगा। नाउ टू थिंग्स वर देयर फॉर हैदराबाद, दैट इफ हैदराबाद वुड स्टे इंडिपेंडेंट, अ बिग होल इन द सेंटर ऑफ इंडिया, इट वुड बी इंडिपेंडेंट। आप अगर देखिएगा मैप, इस तरीके से मैप है, तो इतना बड़ा एरिया जो है हैदराबाद का, दिस वुड हैव बीन इंडिपेंडेंट। सो दिस वाज अनएक्सेप्टेबल। उससे भी बड़ी चीज क्या अनएक्सेप्टेबल थी कि इतना बड़ा होल जो है वो पाकिस्तान हो जाए। ओके, इतना बड़ा जो होल है वो पाकिस्तान बन जाए। सो वी वेर वेरी क्लियर दैट नाइदर कुड वी अलाउ देम टू बी इंडिपेंडेंट, नॉर वी कुड अलाउ देम टू गो एंड join Pakistan. Okay, so Sardar Vallabhbhai Patel, he was India's first home minister and minister of state, so he led the integration process. And VP Menon, he was a secretary who played a key role in negotiating with the princely states. So what had happened was that many princely states, they were saying that, oh no, I'm going to hold on and I'm going to see, okay, India, tell me what you are going to give me. Pakistan, you tell me what you are going to give me. Okay, no, I'll make a decision. तो तुरंत जाके उनको बोला गया, देखो ऐसी बात है, दैट जल्दी से आप करो। ओके, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सेंड द आर्मी और वी आर गोइंग टू सेंड द पुलिस। दोनों में से अगर कमजोर थे तो उन पर पुलिस एक्शन, और अगर ताकतवर थे तो उनको थ्रेटन किया गया आर्मी एक्शन से। सो नाउ व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स दे अग्रीड। बीच में बात थी कि जोधपुर जो है, जोधपुर विच इंक्लूडेड अ वेरी लार्ज एरिया, नॉट ओनली द जोधपुर डिस्ट्रिक्ट बट ए वेरी वेरी लार्ज एरिया ऑफ Rajasthan, initially they were also thinking and they were negotiating with Pakistan, and they were asking Pakistan, तुम मुझे क्या दोगे? What are you going to give me if I join you? What are the terms? Okay, what तो पाकिस्तान उस समय एक देखिए ऐसा था ना, सिनिस्टर टाइप की कंट्री है। तो जो मुंह मांगी चीजें जो है वो पाकिस्तान ऑन पेपर दे दे रहा था। एंड पाकिस्तान हैड थॉट दैट कि इनको पहले ल्यूर करके, इनको जो है मैं ल्यूर करके बुलाऊंगा पाकिस्तान में, एंड देन इनकी राइट्स तो मैं ऐसे भी छीन ही लूंगा। सो पाकिस्तान वाज गिविंग अ ब्लैंक चेक। इट वाज सेइंग दैट आई विल गिव यू 100 करोड़, आई विल गिव यू 75 करोड़, ओके, यू कम टू मी, एंड देन I will give you autonomy. You can do anything you like. Okay, you can retain the internal politics, anything you like. All these things were there. But Pakistan was very clear in one fact that when the moment these people will join Pakistan, और उसके बाद जो है हम लोग इनको बढ़िया से बताएंगे, उनको जो है हम लोग असली चेहरा दिखाएंगे। सो इनिशियली मेनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स दे वेर ल्यूर्ड बाय दिस। इंडिया वाज वेरी क्लियर। इंडिया से पूछते थे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं कि क्या आप मुझे 100 करोड़ दोगे? पाकिस्तान तो ब्लैंक चेक दे रहा है मेरे को। इंडिया वॉज वेरी क्लियर, नहीं भाई हम नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव यू, these are the terms, we are giving you a, we are giving you the opportunity to retain your personal property, we will maybe give you some privy purse, 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है उस समय बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। दिस इज समथिंग दैट वी आर प्रॉमिसिंग यू। बट ये जो पाकिस्तान के चोचले हैं कि 75 करोड़ और 100 करोड़ और ये सब चीज जो है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू। सो दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट। धीरे धीरे करके नेगोशिएशंस, आर्म ट्विस्टिंग, बहुत सारे स्टेट्स तो अपने से इंडिया में मर्ज हो गए बिकॉज दे थॉट दैट दैट विल बी द बेटर डील, बिकॉज फिजिकली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रिमेन इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, एंड नाइदर इट वाज feasible for them to join Pakistan, which was based on as a homeland for Muslims. Okay, so Raja was Hindu, so many of the princely states, they rather said कि it is better to join India willingly. But बात जो है वो 3 स्टेट्स पे आके रुकी थी। किस किस पे? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो इनिशियली स्टेट्स ज्वाइंड वॉलेंटरली। सो ओवर 500 प्रिंसली स्टेट दे ज्वाइंड इंडिया विदाउट रेजिस्टेंस, जिसमें बीकानेर, बड़ौदा, पटियाला, दे क्विकली साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। स्टेट्स दैट रेजिस्टेड एंड रिक्वायर्ड फोर्स और स्पेशल नेगोशिएशंस, तो हैदराबाद था उसमें। सो निजाम ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, बाद में बोलने लगा मैं पाकिस्तान ज्वाइन कर लूंगा, डोंट पुश मी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन। सो दिस थ्रेट इट वाज परसीव्ड वेरी सीरियसली एंड ऑपरेशन पोलो स्टार्टेड। एंड ऑपरेशन पोलो में क्या हुआ? विद इन 5 days हैदराबाद बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया।
और हैदराबाद स्टेट में एक परमवीर चक्र भी थे फ्यूचर। हैदराबाद स्टेट में एक सरेंडर्ड ऑफिसर थे, एक कैप्टन थे, जो कि बाद में इंडिया के परमवीर चक्र भी बने थे। एनी आइडिया हु वी आर टॉकिंग अबाउट? एक टैंक कमांडर थे। एनी 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 आइडिया? टैंक कमांडर थे 1960। वेरी गुड, आरदेशिर तारापुर। ओके, आरदेशिर तारापुर जो है, ही वाज इनिशियली, ओके, ही वाज आरदेशिर तारापुर थे, was he तारा was तारापुर द गाय? यस, तो तारापुर जो थे, ही ज्वाइंड हैदराबाद आर्मी फर्स्ट। वहां पर जो है कैप्टन थे, और क्या उसके बाद सरेंडर किया, और उसके बाद जो है उनको इंडियन आर्मी में मिला लिया गया, एंड ही डाइड। ओके, ही वाज किल्ड इन एक्शन एंड ही गॉट द परमवीर चक्र। सो हैदराबाद बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। देन वी कम टू जूनागढ़। तो जूनागढ़ में क्या हुआ था? प्लेबिसाइट हुआ था। सो जूनागढ़ जो थे मुस्लिम रूलर थे। और जूनागढ़ का अगर आप मैप देखिएगा, सो दिस इज सपोज दिस इज द मैप ऑफ गुजरात। तो जूनागढ़ ये रहा। ओके, इस एरिया में जो है आपका जूनागढ़ है। तो इट वाज ए ट्रेवेस्टी, इट कुड हैव बीन अ ट्रेवेस्टी अगर पाकिस्तान को ये एक्सेस मिल जाता, पाकिस्तान यहां पर अपना एक पोर्ट बनाता और बढ़िया से इंडिया को जो है इट वुड हैव हरास्ड। तो इंडियंस, ओके, इंडियंस दे हैड टू एक्ट क्विकली, एंड इंडियन दे सेंड फोर्सेस एंड ऑर्गेनाइज्ड अ वोट। अभी भी जो है अगर आप पाकिस्तान को देखिएगा तो दे पब्लिश ए मैप विथ जूनागढ़ एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके, and 99% of the people they voted to join India, and Junagadh was integrated. Okay, so वही प्रॉब्लम थी, मुस्लिम रूलर, हिंदू पॉपुलेशन। सो हिंदू पॉपुलेशन वांटेड टू मर्ज, मुस्लिम रूलर जो है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़ी हंसी वाली बात है, ये बात है कि ये जो मुस्लिम रूलर थे, ही फ्लेड विथ हिज डॉग्स एंड ही लेफ्ट हिज वाइफ्स। अपने जो डॉग्स हैं, उनके पूडल्स होते थे, या कोई दो तीन चार डॉग्स उनके पास बहुत कीमती थे, तो एक जो उनका पर्सनल प्लेन था, प्राइवेट प्लेन था, उसमें डॉग्स को भर के भाग गए। और जो उनकी बहुत सारी वाइफ्स थी, ओके, सो इज मैरिड टू मेनी मेनी वाइफ्स, तो उसमें से कुछ वाइफ्स को ये छोड़ गए थे, तो डॉग्स ले गए थे, वाइफ्स को छोड़ गए थे। कश्मीर जो है, कश्मीर का केस अलग था। तो कश्मीर इनिशियली सेड दैट वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट। नाउ द थिंग वाज कि पाकिस्तान वाज वेरी श्योर दैट विदाउट कश्मीर देयर कैन बी नो पाकिस्तान। विदाउट कश्मीर देयर विल बी नो पाकिस्तान, दे वर वेरी श्योर अबाउट दिस। सो पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, गुड ट्राई, आप जो है कश्मीर जो है हमारा है। और कश्मीर बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी, ओके, मुस्लिम मुस्लिम मेजोरिटी है, जैसे सिंध मुस्लिम मेजोरिटी है पाकिस्तान में, जो पंजाब मुस्लिम मेजोरिटी है, तो कश्मीर भी मुस्लिम मेजोरिटी है। सो विदाउट कश्मीर देयर विल बी नो पाकिस्तान। ओके, सो महाराजा ही सॉट इंडियाज हेल्प। अब यहां पर हुआ क्या कि बड़े बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, दैट नेहरू वाज इनडिसाइसिव टिल द लास्ट, क्या करना है। Okay, so the army chief and the the people from the Jammu Kashmir administration, they had come to Delhi, and they asked Nehru कि these Pakistanis we cannot hold anymore, जो डोगरा आर्मी थी, that was getting killed. And what had happened was there was a Muslim soldiers and Hindu officers in the Jammu Kashmir army, and the Muslim soldiers, they had rebelled। ये जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उन्होंने रिबेल कर दिया था अगेंस्ट द हिंदू ऑफिसर्स, और उसके वजह से जम्मू कश्मीर आर्मी दे कुड नॉट डू एनीथिंग। ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज दैट नेहरू वाज इनडिसाइसिव एंड पटेल वाज सिटिंग विथ हिम, और नेहरू से पूछा जा रहा था सर करना क्या है अब, व्हाट शुड बी डन। सो ही सेड नो नो, इंटरनेशनल लॉ एंड समथिंग लाइक दिस। अब हुआ क्या कि पटेल वाज सिटिंग देयर एंड पटेल आस्क्ड नेहरू that Jawahar, do you want Kashmir to be part of India? So he said yes but, ऐसे बोलने लगे। तो जैसे ही उन्होंने yes but कहा, तो उन्होंने पटेल said to the officer, you got your answer, get the army ready, otherwise we would have lost। okay, this is a documented fact। so yes बोलने से क्या हुआ, इंडियन आर्मी गॉट रेडी, उसमें बीजू पटनायक भी थे। बीजू पटनायक ही लिफ्टेड द ट्रूप्स फ्रॉम दिल्ली, एंड उसके बाद जो है वो चले गए, और वहां पर जो है ड्रॉप किया, पैरा ड्रॉप किया, और उसके बाद इंडियन आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट से मारते मारते उनको जो है आज का जो प्रेजेंट लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां तक ले गई। और इंडिया जो है उसने कश्मीर को मिला लिया, कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया बट विथ स्पेशल स्टेटस। प्लीज कीप इन माइंड, हैदराबाद और जूनागढ़, इट सिंपली मर्ज विथ इंडिया,
whereas Kashmir it became part with special status. तो कश्मीर जो है, this was always a bonus, आप ऐसे कह सकते हैं। कश्मीर जो है इट वाज ऑलवेज ए बोनस टेरिटरी फॉर अस। हम जो है पहले कभी सोचा नहीं था हमने कि यार कश्मीर भी हमारा पार्ट होगा, बट सिचुएशंस ऐसी बनी कि हम कश्मीर भी हमने ले लिया उनका। ओके, सो दिस इज अ मेजर एल नॉट फॉर इंडिया, इट इज अ मेजर लॉस फॉर पाकिस्तान। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान वाज आइंग द इंटायर कश्मीर और उसको मिला कुछ नहीं। ओके, ठीक है। मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सो मणिपुर जो है इट हैड एन इलेक्टेड असेंबली बट वो इट वाज प्रेशर्ड इनटू मर्जिंग विथ इंडिया, और किंग ऑफ मणिपुर जो है ही साइंड द मर्जर एग्रीमेंट इन 1949। सो मेनी ऑफ द ग्रुप्स of the Manipuri separatist group, the Meitei separatist group, they said that we have been tricked into joining India. Okay, so after integration, India still had small princely states within larger regions. So 1956 में we had a State Reorganization Act, and this led to abolition of princely states as separate administrative units, and it also led to creation of states on linguistic basis. मध्य भारत, राजस्थान, ट्रावनकोर, कोचिन वेर मर्ज्ड इनटू लार्जर स्टेट्स। अब हम बात करते हैं तीन कमीशंस के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्रीलिम्स एंड एज वेल एज GS1 मेंस। ओके, ये क्वेश्चन आपका GS1 मेंस में आता है, GS2 में नहीं आएगा। सो GS1 मेंस में पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक सेक्शन है, उसमें एक क्वेश्चन जरूर जो है यूपीएससी हर 4-5 साल में डाल देती है। सो धर कमीशन 1948, जेवीपी कमेटी 1948 और फजल अली कमीशन 1953। सो हुआ क्या था कि रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है। तो reorganization initially it was done on the basis of administrative convenience, but later on people started demanding कि आप linguistic और cultural basis पे भी कीजिए। You do it on the basis of linguistic as well as cultural basis. So three major committees came: Dhar Commission, JVP Committee, and the Fazal Ali Commission. So Dhar Commission जो है वो 1948 में था। So after independence, there was strong demand for states based on language, and Congress leaders were unsure whether states should be divided based on the administrative convenience or linguistic identity. So हमें देखिए ब्रिटिशर्स ने किस बेसिस पे डिवाइड किया था? What was the basis of division for the British India? It was administrative. Okay, administrative convenience. They did not keep into account the cultural sensibilities. So now people thought ki what should be done? Should we continue the administrative convenience or should we move towards cultural and linguistic identity? सो गवर्नमेंट ने उसके लिए धर कमीशन को एस्टैब्लिश किया, और धर कमीशन जो है उसके चेयरमैन थे SK धर, एंड ही वाज द नेम सेक ऑफ द कमीशन। एंड की रिकमेंडेशन क्या था? अगेंस्ट लिंग्विस्टिक डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्लीज रिमेंबर दिस, ये GS1 में आता है, प्रीलिम्स में भी आएगा अगर यूपीएससी पूछना चाहेगी फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पहला जो कमीशन बना था फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, इट वाज अगेंस्ट लिंग्विस्टिक डिवीजन, and it feared that linguistic states might encourage separatism and weaken national unity, and it rejected the separate Telugu speaking state. तो क्या था देखिए, आंध्रा आंध्रा जो है अभी यहां पर क्या है, हैदराबाद स्टेट से आपको तेलंगाना वाला एरिया देखने को मिलता है, और मद्रास स्टेट से आपको आंध्रा वाला एरिया देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या है बेसिकली, ये दोनों आपको लगेगा कि यार ये दोनों जो है दीज आर तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, है ना। हम तो यही कहेंगे ना कि बोथ आंध्रा आंध्रा पीपल दे स्पीक तेलुगु एंड द तेलंगाना स्पीकिंग पीपल दे स्पीक तेलुगु। सो व्हाई डिड दे, दे हैव अ डिस्टिंक्ट हिस्ट्री। इनका जो हिस्ट्री है वो डिस्टिंक्ट है। दैट इज वाई ये जो कोस्टल वाले पीपल है आंध्रा, दे आर डिस्टिंक्ट इन देयर हिस्ट्री, एंड द तेलंगाना वाले जो तेलुगु हैं, ठीक है, दे आर अ बिट डिस्टिंक्ट। तो यहां पर जो है हमने क्या देखने को मिला था कि इनिशियली द तेलुगु स्पीकिंग पीपल दे डिड नॉट वांटेड टू लिव इन तमिल डोमिनेंस। They said that, why should we, okay, why should we be in Madras? Okay, Madras state में तमिल डोमिनेंस है, तेलुगु पीपल दे डिजर्व अ डिफरेंट स्टेट। ओके, सो रिकमेंडेशन ऑफ द धर कमीशन or the Dhar committee, it was very unpopular because linguistic groups were mobilizing for separate states already.
and people rejected the idea of administrative division, and they said that we are not asking for separate country, we just want that you respect our language, because if we will be in Madras state, what is going to happen? If we will be in Madras, we will be under Tamil dominance. Okay, so we don't want that. Okay, so then जब इतना धर कमीशन जो है उसके वजह से काफी ज्यादा हल्ला हुआ, एंड अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द धर कमीशन. सो उसके लिए जेवीपी कमिटी बनी थी. तो जेवीपी इनिशियल्स है, जवाहरलाल नेहरू से जे, वल्लभ भाई पटेल गेव वी, एंड पत्ताभी श्री सीतारमैया ही गेव पी. सो वी हैव फाइनली द जेवीपी और द जवाहरलाल वल्लभ भाई पत्ताभी कमिटी. So, key recommendation, again they rejected linguistic reorganization. Okay. So again they said that ki Dhar committee was correct. We are against creating states solely on the basis of language. It is against national unity. And they said that instead of reorganization, we will wait and watch. हम जो है wait करेंगे, watch करेंगे. Okay. And it agreed, but that in some cases language might be considered, but in future. For now, we have to focus on national unity. Okay, so JVP committee's recommendations slowed down the reorganization process, but public pressure, it continued. So movement for a separate Andhra state for Telugu speaker has intensified the moment JVP committee's report came, and death of Potti Sriramulu in 1952 after a hunger strike for a separate Andhra state. So the moment Potti Sriramulu died, what happened? There was utter chaos in the Telugu speaking areas. There was mayhem. People started to get killed. There was riots. Okay. So because of this death of Potti Sriramulu, they basically started Fazal Ali Commission. अब देखिए कुछ हो नहीं सकता था. Now, Fazal Ali Commission was formed. What had happened before? Dhar Commission, याद रखिएगा. This is GS1. I'm saying again, post-independence, important question. Dhar Commission, then we have the JVP committee. Both of them, they ruled out. But what happened in between? After they ruling out linguistic states, that the Fazal Ali Commission, it came, but it had no choice. Why? Because of the death of Potti Sriramulu, what had happened was basically chaos, and people, they were getting killed. There was total collapse of law and order. Okay. So Nehru, he basically had no choice to establish the Fazal Ali Commission. And Fazal Ali Commission जो है, ये after the death of Potti Sriramulu बना था, and he did a 56-day hunger strike. So this is the real hunger strike. मैंने पहले भी कहा है कि उस समय के लोग जो हैं 50s और 40s और 30s के लोग, दे यूज टू डाई इन हंगर स्ट्राइक. अभी क्या होता है, नेताजी हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, द नेताजी सिट्स ऑन हंगर स्ट्राइक, ग्लूकोज लो होता है, एंड ही इज रश टू द हॉस्पिटल एंड गिवन बनाना एंड ग्लूकॉन डी. ओके, बट उस समय जो है पीपल थिंग्स यूज टू गेट रियल. सो गवर्नमेंट इट अग्रीड टू क्रिएट आंध्र प्रदेश इन 1953 because they said that कि अब जो है this situation can only be controlled if we give a Telugu speaking area. So अब जो है एक बार तेलुगुस को आपने दे दिया अपना एरिया आंध्र प्रदेश, what had happened after that? What had happened? So this further increased demands for linguistic states. अब सब बोल रहे हैं उसको क्यों मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला? You know why you have given the Telugus their state? I also want it. सो अब जो है एक पैंडोराज बॉक्स खुल चुका था. सो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, इसको सेटअप किया गया अंडर फजल अली. तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है दोस्त, फजल अली कमीशन. देन H.N. Kunzru and K.M. Panikkar. Okay, so all these people, they were very, very big stalwarts. They formed the membership. एंड की रिकमेंडेशन क्या था, देखिए, दे हैड देयर हैंड टाइट्स. द फजल अली कमीशन, दे हैड देयर हैंड टाइट्स. व्हाई? बिकॉज नाउ दे हैड ओपनड द पंडोरा बॉक्स. द डेथ ऑफ Potti Sriramulu and the creation of Andhra state, it had led to the opening of Pandora's box. अब हर किसी को देना ही देना था. So they supported the linguistic state. Okay. So commission recommended that states should be reorganized based on language, but also consider the economic, cultural, and administrative factors. And they proposed reorganization into 16 states and 3 union territories.
and they opposed small weak states, and they suggested कि merge करिए smaller region को into larger viable states. So 1956 after, देखिए 1953 में ये कमीशन ने रिपोर्ट दिया, तो 1956 the State Reorganization Act was passed, implementing most of the recommendation of the Fazal Ali Commission, and 14 new states and 6 union territories were created, or linguistic reorganization became the basis of Indian state, which led to separation of Gujarat and Maharashtra. Haryana was carved out of Punjab because Punjab में पंजाबी बोली जाती थी. Haryana was the Hindi speaking areas of Punjab. So Haryana was later, it was sort of separated. Then Jharkhand, जहां पर ट्राइबल लैंग्वेजेस थी, उत्तराखंड जहां पर पहाड़ी बोली थी, और छत्तीसगढ़ अगेन जहां पर ट्राइबल लैंग्वेजेस थी, उसको जो है हमने क्लियर किया. तो ये जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, दिस ऑल्सो हैड अ ह्यूज कल्चरल फैक्टर because the Pahadi people, the Gadwalis and the Kumawis and the tribals of Jharkhand and Chhattisgarh, they used to say that we have nothing in common with the caste Hindus of the this area of Madhya Pradesh and of Bihar, and the Uttarakhand people, they used to say that we have nothing in common with the Bhaiyas of UP. Okay. So what was the immediate change after the State Reorganization Act? Abolition of existing state structure. So old provinces and princely states were reorganized into new states. Part A, Part B, and Part C states were abolished. If you remember, you guys remember cabinet mission plan में we had all these basically जो है हमने इसको प्रोविंसेस को बांटा था. उसी तरीके से आपका जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो है स्टेट्स, इट एग्जिस्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. सो पार्ट ए में कौन से स्टेट्स थे? फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस. पार्ट बी में फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स, एंड पार्ट सी में स्मॉलर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स वेर देयर, एंड द न्यू सिस्टम मर्ज्ड दीज इनटू ए यूनिफॉर्म स्टेट. ओके. So new states क्या क्या थे? Andhra Pradesh was there, which merged Andhra state with Telugu speaking parts of Hyderabad state to form one Andhra Pradesh. And later again, this problem persisted between the people of the former Hyderabad state, the Telugu speaking people of former Hyderabad, and the Telugu speaking people of former Madras, because they thought that there is a wide difference between the Telugus of the Rayalaseema region and the Telugus of the Hyderabad region. Then we have Bombay. So it merged Bombay states with Saurashtra, Kutch, Marathi speaking parts of Hyderabad. So Bombay later on in 1960 again, बॉम्बे से गुजरात जो है उसको निकाल दिया गया था. वन थिंग ऑल्सो यू माइट नो दैट, डू यू नो एनी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हु वाज किल्ड बाय पाकिस्तान? किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको पता है हु वाज किल्ड बाय पाकिस्तान? It was Gujarat's chief minister. CM of Gujarat, he was shot down. His plane was, he was traveling with his wife and his aide de camp, and he was shot down in the 1965 war by Pakistani jets. Okay, उसके बाद उसके जो पाकिस्तानी जेट के जो पायलट है, after 60 years in 2013-14, they wrote 50 years, they wrote the apology letter to the daughter of the CM. Okay. So Kerala, it was formed by merging Travancore, Cochin with Malayalam speaking part of Madras state. Then Madhya Pradesh, it merged Madhya Bharat, Vindhya Pradesh and Bhopal into Madhya Pradesh. Mysore, जिसका नाम बाद में कर्नाटक कर दिया गया था. So they merged Kannada speaking regions from Madras, Hyderabad, Bombay and Coorg to form Mysore. Odisha, it basically expanded to include the Oriya speaking areas. Then Punjab, it included Hindi speaking areas of Patiala and East Punjab State Union. बाद में जो है, we see that Haryana or the Hindi speaking region were separated. Okay. Then Rajasthan. So they merged smaller princely states into a unified Rajasthan. Then Tamil Nadu, they retained Tamil speaking areas after losing Telugu, Malayalam and Kannada region. Uttar Pradesh or United Provinces, it remained mostly unchanged. Okay, West Bengal, it remained mostly unchanged. Assam, जिसमें बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे. Assam was a huge state back then. Assam में majority of the northeast states, they were merged with Assam and later they were granted statehood.
Jammu and Kashmir, it retained its special status under Article 370, and Bihar, it remained mostly unchanged. Later on, we see that Jharkhand जो है उसको यहां से निकाला गया था. अब हम बात करते हैं न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956. व्हाट वी सी, ओके, व्हाट वी सी here in new states and union territory ki UPSC and even in many test series of coaching institute we get the chronology. हमें जो है क्रोनोलॉजी मिलता है कि ओके व्हेन वाज दिस स्टेट फॉर्म्ड. यूपीएससी स्टिल टू आस्क, बट मेनी टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा, ओके, बहुत ज्यादा जो है इसको पूछता है. ओके, व्हाई, व्हाट्स द क्वेश्चन, व्हाई अ सेपरेट कट ऑफ डेट फॉर असम? एज इन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड what you're trying to ask. एज इन सेपरेट कट ऑफ डेट, इट मींस नहीं, उस समय जो है, उस समय दे डिड नॉट पे हीड टू द डिमांड्स ऑफ अ स्टेटहुड. दे थॉट दैट एक ही असम में जो है बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दे कैन सर्वाइव. ऑलराइट, एनीवेज, सो स्टेट्स क्रिएटेड आफ्टर 1956 की हम बात करते हैं. Maharashtra and Gujarat were separated in 1960. So bilingual Bombay states, they were split into two states, Marathi and Gujarati, under the Bombay Reorganization Act. Then Nagaland, it was formed in 1963. So Nagaland mein, there was a lot of demand by the Naga tribes for a separate state. उसके बाद Haryana in 1966. So Haryana, when it became a state, it was very poor state. आज के डेट में हरियाणा, इट इज रीपिंग द डिविडेंड ऑफ द having Gurgaon and having industries in Manesar, and it is reaping the dividend of green revolution, but at that time it was dirt poor state. Okay, so if you want, you can read about there is one IS officer. He has detailed. Okay, he retired. He took retirement prematurely, and then he went into politics. तो उसमें लिखते हैं कि कैसे जो उस समय जो है देवीलाल जी, he was basically leading the state, और कैसे जो है उन्होंने हरियाणा को जीरो से, क्योंकि जीरो से जो है उठाना स्टार्ट किया था. हिमाचल प्रदेश in 1971. So they converted from union territory to state due to economic and political viability. Meghalaya in 1972, it was carved out of Assam to give autonomy to the Khasi, Garo and Jaintia tribes. Manipur, again in 1972, it was converted from union territory to state due to the tribal demands. Tripura in 1972, again converted from union territory to state. Sikkim. So Sikkim was a unique case. Why? Because it was a foreign country. It was sort of a protectorate of India. Then it got merged into India. तो यहाँ के जो लीडर थे, he was from the Chopgyal dynasty, and the people they were of Nepali origin. इनके जो elites थे, इनके जो elites थे सिक्किम के, they were of Tibetan origin, whereas the common folks, the common people, they were of Nepalese origin. आपको याद होगा मैंने एंग्लो नेपाल वॉर में इसको भी डिस्कस किया था. So they became part of India through a referendum, and they were granted full statehood under the 36th constitutional amendment. Okay. So इसमें जो है we again see Mizoram. So Mizoram जो है basically Mizo Peace Accord. So मिजोरम के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने, मिजोरम के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने आफ्टर द मिजो पीस अकॉर्ड, ही वॉज ट्रेन्ड बाय आईएसआई ऑफ पाकिस्तान. ओके, he was trained by ISI, and he received training in Karachi, and then he sort of laid down his arm and he agreed to join the political process. Okay. Arunachal Pradesh, it was created in 1987. It was converted from union territory to state. पहले इसको क्या कहा जाता था, आपको पता होगा, नेफा कहा जाता था. ओके, इसको जो है नेफा कहा जाता था. गोवा, इट वाज क्रिएटेड इन 1987. इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम दामन एंड दीव एंड गिवन स्टेटहुड. तो ये पोर्चुगीज टेरिटरी थी, वो पहले पोर्चुगीज टेरिटरी को एक साथ रखा जाता था. ओके. देन छत्तीसगढ़ इन 2000, इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश. उत्तराखंड 2000, झारखंड इन 2000. तो 2000 में थ्री स्टेट्स वेर देयर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड. तेलंगाना, इट वाज क्रिएटेड इन 2014. ओके. अभी भी बहुत सारे स्टेटहुड की बात चल रही है. सम पीपल दे वांट मिथिलांचल. मिथिलांचल इज नॉर्थ बिहार एरिया. ओके. वो लोग मैथिली के बोलते हैं. ओके, दे स्पीक मैथिली, दे डू नॉट स्पीक
they do not speak Bhojpuri, okay, which is the dominant language. और उसके बाद जो है गोरखालैंड की बात चल रही है, ओके, गोरखालैंड की बात चल रही है। ऑल राइट। उसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो इश्यूज इन नॉर्थन कर्नाटका। नॉर्दर्न कर्नाटका में क्या इशू है? नॉर्दर्न कर्नाटका में देर आर मराठी स्पीकिंग एरियाज, ओके। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ओके, टुलू नाडु की बात चल रही है, पीपल, टुलू स्पीकिंग पीपल, दे वांट टुलू नाडु। यस। सो यूनियन टेरिटरीज जो क्रिएट हुए उसको देखते हैं। सो दिल्ली, इट वाज क्रिएटेड इन 1956, सो इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। देन चीफ कमिश्नर बाद में क्या बन गया? किस नाम से जाना जाने लगा? किस नाम से जाना जाने लगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जो है चीफ कमिश्नर को आप किस नाम से जानते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानते हैं, ओके। चंडीगढ़, it was in 1966, it was created as a union territory and it was made the capital of both Punjab and Haryana. Puducherry, it was created in 1962, it was a former French territory. Many people ask that why not merge Puducherry with Tamil Nadu? I think this was a question somebody had asked in the class. See, if you go to Puducherry, if you had, anytime you can visit Puducherry, so you will realize that they are a completely different world. दे आर ए कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। फ्रेंच, एवरीथिंग इज फ्रेंच देयर, ओके। सो उनका कल्चर जो है पूरा फ्रेंच है, इसीलिए उनको मर्ज नहीं कर सकते आप तमिलनाडु के साथ। देन गोवा, दामन एंड दीव, दे मर्ज इनटू इंडिया आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज रूल। उसके बाद जो है दामन एंड दीव से गोवा को सेपरेट करके एक अलग स्टेट बना दिया गया। Then Dadra and Nagar Haveli, it was created in 1961. It was merged into India after liberation from Portuguese rule. बाद में दामन एंड दीव जो है उसको हम क्या देखते हैं कि जो पोर्चुगीज स्पीकिंग एरियाज थे, दादरा नगर हवेली और दामन एंड दीव को, उसको मर्ज कर दिया गया इनटू सिंगल यूनियन टेरिटरी। दादरा एंड नागर हवेली किसने दिया था पोर्चुगीज को? पोर्चुगीज ने कैसे दिया था? एनी आइडिया? The Portuguese got it as a compensation by the Marathas. The Marathas, by mistake, they had sunk a Portuguese ship. और उसके compensation में, as a token of sorry, they had given Dadra and Nagar Haveli to the Portuguese. Okay, why? Because they already were in locking horns with the Britishers, so they did not wanted the Portuguese to antagonize the Portuguese. Okay. उसके बाद जो है हम क्या देखते हैं? लक्षद्वीप, इट वाज क्रिएटेड इन 1956। तो लक्षद्वीप का सिचुएशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। लक्षद्वीप को people had forgotten that Lakshadweep even existed. Okay, so what had happened was that some people, especially some people from the Indian Navy, okay, they remembered that, okay, ये जो है लक्षद्वीप भी एग्जिस्ट करता है। सो इनिशियली पाकिस्तान जो है उनको पहले याद आया था, तो पाकिस्तान दे वांटेड टू एनेक्स लक्षद्वीप। बट देन व्हाट हैपेंड वाज कि इंडियन नेवी कोची बेस से एक इंडियन नेवी के स्पीड बोट को भेज के और वहां पर जो है एक झंडा गाड़ा गया एंड दे सेड कि अब लक्षद्वीप इज आर्स। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, they formed in 1972 as union territory before becoming full states in 1987. Andaman and Nicobar Island in 1956, so they were given union territory status for administrative reasons. Ladakh, it was separated from Jammu and Kashmir and it was given a status. So Ladakh जो है उसमें क्या status है? Ladakh is a union territory without a legislature, whereas Jammu Kashmir is a union territory with a legislature. And it was converted from a state into union territory, ठीक है। सो अभी जो है कुछ जीनियसेस कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है हम लोग वापस से स्टेट बना देंगे। सो दे आर कंप्लीटली इडियट्स, ओके। सो ये चीज याद रखिएगा दैट 1972, 1987 एंड 2000s वेर मोन्यूमेंटल ईयर्स फॉर इंडिया। वाई? बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट हुए इन सालों में, ओके। सो ये जो है आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अ गुड चंक ऑफ योर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इज ओवर नाउ। वी हम जो है सिटीजनशिप पे शिफ्ट कर सकते हैं। एनी डाउट दैट यू गाइज हैव?